Are you a post-intern and trying to crack NEET PG 2026? Then this video is definitely for you. We have helped multiple people go from 60, 70, 80 corrects, fighting personal issues and getting to more than 150, 160 corrects in less than 4 to 5 months. One thing that you need to do is put in the effort. What you need to focus on, that will be our goal to look at. Number one thing that you're going to get from this video is how many revisions to do, how to tackle Q banks, first read should take how much time, what short resources can you use, how to integrate those short resources, and many more important questions are going to be answered in this video. But before that, please hit the subscribe button. Do fill out the Google form below if you need a one-on-one mentorship call to figure out where you are, where you need to go, and what steps you need to take for that. Number one thing is reflection. That is very, very important. You have two things to your advantage now. Being a post-intern, being a dropper, you have two things in your control. Number one is the time that you can give to your studies. Number two is the environment. To the extent you can choose your environment, you can take a drop from Delhi, you can go anywhere, choose your environment. You can stay at home, have all the advantage of home food, your family, all the support. This is all what you can choose and use it to your advantage. अभी अपने पास कितना टाइम है? How much time do we have right now? We have almost November से चालू करके जून तक का टाइम. Bare minimum the exam is going to happen in June, not before that hopefully. बट उसके बाद ही होगा जो भी होगा, ठीक है. सो वी हैव मोर और लेस 8 to 9 months. अगर अपन नीट पीजी सब्जेक्ट्स के ट्रेंड्स को देखें, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है. अगर मैं हाईलाइट करूँ तो पैथ, माइक्रो, फार्मा, surgery and obs gynae, these are the most high yield subjects for us, giving more than between 10 to 15 questions each for at least path, pharma, micro, and giving more than or around 20 questions for surgery and obs gynae each. इसका मतलब क्या है, कैसे यूज करना है इस स्टैट को? Very, very basic. Keep a copy and pen ready with you so that you are able to note down the important things. These 5 subjects combined with medicine will give you almost 60% of the questions in the paper. इन 5 सब्जेक्ट को मेडिसिन में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ. तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं सर आपने तो बकवास कर दी, मेडिसिन में तो सब कुछ आता है. बट पैथ, फार्मा, माइक्रो करने से मेडिसिन सॉर्ट आउट हो जाएगा. कुछ चीज़ें कार्डियो की लाइक ECG या कुछ इमरजेंसीज या ABG, बस यही चीज़ें करनी है मेडिसिन के अंदर. इफ़ योर पैथ, माइक्रो, फार्मा इज स्ट्रॉन्ग इनफ, मेडिसिन में तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली है. सो दिस 5 सब्जेक्ट्स प्लस मेडिसिन विल ऑलवेज गिव यू 60-65% क्वेश्चन, जिसमें मेडिसिन में तुम्हें 4 to 5 days से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दैट्स अ गारंटी. बट यू नीड टू डू थिंग्स दैट आई टेल यू टू डू, ठीक है. अभी क्या है, अभी टाइम है, टाइम टू बिल्ड. जो भी तुम्हारी गलतियाँ हुई है उस पर रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. तुम्हें बैठना एक बार अकेले में बहुत ज़रूरी है, या हमसे बात करना ज़रूरी है कि तुम्हारी क्या गलतियाँ हुई थी. क्या तुमने GTs नहीं दिए, क्या तुमने रिवीजन नहीं करा, क्या तुमने नोट्स कंसाइज नहीं करे. ईच ऑफ दीज पॉइंट्स वी आर केटरिंग टू and we are using it to our advantage by the 1% improvement principle stated by Brailsforce, and we are going one step ahead each and every day. That's why we are able to produce the results that we have produced. सबसे पहले फर्स्ट रीड का हमारा पर्पस क्या है? फर्स्ट रीड का पर्पस है getting to 100 corrects and maintaining it and concising the material, ठीक है. हमारे को 150 करेक्ट्स पहले रीड पर नहीं लेकर आने हैं, हमें सिर्फ 100 करेक्ट्स तक पहुंचना है, उसको मेंटेन करना है, और मेन गोल है मटेरियल को कंसाइज करना है. क्योंकि अगर हमारे पास कंसाइज मटेरियल नहीं है एट द टाइम ऑफ रिविजन, देन वी आर गोइंग टू स्ट्रगल. दिस प्रिपरेशन इज ओनली एंड ओनली फॉर द लास्ट 10 days and nothing else. If you are able to revise everything that you have read throughout the year in the last 10 days, then you are going to be able to ace the exam. There is no other way around it. There is nothing that will work out for you. If you are not able to concise your notes, the short notes लास्ट में उठा के किसी और के कहीं के भी बने हुए तुम पढ़ने की कोशिश करोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, and that is going to lead to a big downfall in your performance. So if you have already done main notes, अगर तुमने 3rd 4th ईयर में पढ़ा है, या अपने पिछले ड्रॉप में पढ़ा है, या अपने इंटर्नशिप में कोई मेन नोट्स पढ़े, you can directly jump to rapid revision, quick revision, whatever short form of content is available in whichever platform you are, ठीक है. उसके क्विक रिविजन, शॉर्ट रिविजन वाले वीडियोस या नोट्स को तुम देख सकते हो. Solve more instead of going back to the main videos once again, because if you go back to the main videos and the main notes, it's going to take a lot of time. But short notes को करो, more questions solve करो. अगर तुमने कुछ भी नहीं करा है, स्क्रैच से चालू करने वाले हो,
तो ऑब्स गाइनी सर्जरी, पैथ फार्मा, माइक्रो, इनके मेन नोट्स कर लो। नवंबर से चालू करके 15 दिसंबर का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट 45 डेज में ईजीली इन 5 सब्जेक्ट के मेन नोट्स हम कवर कर सकते हैं, मेन वीडियोस हम कवर कर सकते हैं अगर हम 6 to 7 आवर्स अ डे स्पेंड कर ले इस पे, विच इज़ नॉट मच। 6 से 7 घंटे का इन्वेस्टमेंट हम मांगते हैं यार, तुम ड्रॉपर हो, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इतना कर लेंगे तो हम नेक्स्ट 45 डेज में कंफर्टेबली इन 5 सब्जेक्ट्स के मेन वीडियोस, मेन नोट्स सब कवर कर लेंगे, अलॉन्ग विथ रिविजन, अलॉन्ग विथ कंसाइजिंग। माइंड यू, कंसाइजिंग इज द मोस्ट एंड द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट यू नीड टू डू, ठीक है। अब अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम्हारे में मोटिवेशन नहीं आ रहा, काउंसलिंग चल रही है, दिमाग यहाँ वहाँ भटक रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, भाई बैठ जाओ, चाय पियो, थोड़ा सा वॉक करो, धीरे धीरे करने लगो, खड़े होके पढ़ो, यूज न्यू टेक्निक्स बट स्टार्ट डूइंग इट। And if you're still struggling, just fill out the Google form below. We'll reach out to you. We'll see what can work for you and how we can help you. मेन वीडियोस पढ़ने, PYQs करने और कंसाइज करना है, ठीक है। इस रूटीन को बिल्ड करना चालू करो, छोटे छोटे कमिटमेंट्स अपने आप से रखो और उन्हें पूरा करो। यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, रैपिड रिविजन को पढ़ो, PYQs सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ। यू नीड टू कीप पुशिंग हार्ड, देयर इज नो अदर ऑप्शन। लाइक राज शमानी हैज सेड, यू कांट डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स व्हेन यू आर लिविंग अ लाइफ लाइक एवरीबॉडी एल्स। यू कैन नॉट डू इट। अगर तुम सोच रहे हो घर बैठे बैठे हो जाएगा, ड्रॉप लिया है, मोर टाइम है, मैं पढ़ लूंगा, मेरा हो जाएगा, नहीं होगा भाई। एफर्ट तो डालना पड़ेगा, कोई और पढ़ नहीं सकता तुम्हारी जगह, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। कोई मदद कर सकता है, कोई हेल्प कर सकता है, कोई पुश कर सकता है, कोई मोटिवेट कर सकता है, जैसे तुम इस वीडियो से हो रहे हो। लेकिन एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू सिट ऑन दैट टेबल एंड डू इट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। मेजर्स हैं माइक्रो, फार्मा, सर्जरी, ऑब्स गाइनी, PSM, पैथ, टोटल 60 डेज में कवर करना है। मैंने 45 में बताया, थोड़ा और लीवे देके, ब्रेक देके 60 डेज में। माइनर, ऑर्थो, ENT, ऑफ्थैल, FMT, साइकेट्री, एनेस्थीसिया 20 डेज में कवर हो जाएगा। एवरेज 2 डेज पर सब्जेक्ट को मानेंगे तो 12 दिन होंगे, 2.5 मानेंगे तो 18 होंगे, विद 2 डेज ऑफ ब्रेक, इजीली डुएबल। सो अगर अपन 20 डेज गिने मिड दिसंबर से, तो दिसंबर एंड मतलब 1 जनवरी से पहले वी शुड बी डन विद माइक्रो, फार्मा, सर्जरी, ऑब्स गाइनी, PSM, पैथ, 6 बिग and 6 small, 12 सब्जेक्ट्स आर डन। मेडिसिन को मैं पूरी तरह स्किप कर रहा हूँ, इसके लिए 4 से 5 दिन हम अलग से निकालेंगे जिसमें हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, जो मैं मेंशन कर देने वाला हूँ एक PDF के अंदर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड कर दिया है। बायोकेमिस्ट्री, फिजियो, एनाट 5-5, 6-6 दिन दे देना, 15 दिन में सब कवर हो जाएगा। 110 दिन का स्केड्यूल, 10 डेज ऑफ बफर, 4 मंथ्स, फेब एंड, नवंबर मिड से स्टार्ट करके फेब एंड तक, मार्च मिड तक कर लो, ठीक है। इतना भी कर लिया ना, बहुत हो जाएगा, बहुत, बट कंसिस्टेंटली करते रहना है। 30 दिन बाद, 15 दिन बाद मरे नहीं पड़े रहना कहीं कोने में कि मेरे 3 दिन में होना था, 4 दिन तक, 5 दिन तक खिंच रहा है, खत्म नहीं हुआ, मैं कर नहीं पा रहा। उसके लिए हम बैठे, जस्ट फिल आउट द गूगल फॉर्म एंड वील रीच आउट टू यू, वील हेल्प यू, वील स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन, वील टेल यू व्हाट टू डू ईच एंड एवरी सिंगल डे, and that will help you structure your prep, go to a goal, see your goal and take step towards that goal. So we should be done फेब एंड तक, हमारे पास 4 महीने के अंदर ये हो जाना चाहिए। हर 15 दिन में एक GT देना कंपलसरी है, बेसलाइन GT पहले ही दिन पे। आज ही जिस दिन तुमने ये वीडियो देखा है उस दिन बैठकर दे दो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर आज मैंने ये चालू किया है। मेरा नंबर है 9116324253, 9116324253 कि सर आज मैंने आपका वीडियो देखा, मैं आज ये स्क्रीनशॉट बेसलाइन GT का आपको भेज रहा हूँ, एग्जाम के बाद मेरा रिजल्ट भेजूंगा, सीधा फाड़ दूंगा, देख लूंगा मैं कैसे कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। तो करके दिखाओ भाई, आज स्क्रीनशॉट भेजो अपने 60, 70, 80, 90 करेक्ट्स, 50 करेक्ट, 40 करेक्ट, जितने भी करेक्ट्स है, बेशरम होके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। फिर देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। जो भी हेल्प चाहिए मुझसे खुले दिल मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसलाइन GT स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन पे दे ही देना है। रिवीजन का क्या साइकिल रहेगा, फर्स्ट रिवीजन रहेगा अपना अप्रैल एंड तक 45 डेज का। इसमें अपन वीकली GTs देना चालू कर देंगे। हर बार बॉटम 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे कि हमारे वो पढ़े हुए सब्जेक्ट्स बॉटम 3 में आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। और बॉटम 3 सब्जेक्ट में एक फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि मोर देन 5 क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट कोई बॉटम 3 में गिनना। कोई छोटा सब्जेक्ट जिसमें 4 क्वेश्चन है उसमें से 2 गलत हुए हैं, वो तुम्हारे बॉटम 3 में आ रहे हैं, तो उसको लेके मत बैठ जाना।
ठीक है, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस पूछे हुए होने चाहिए, तब तुम्हारे बॉटम 3 में आए तो कोई बात भी है। सेकंड रिवीजन अपन करने वाले 20 डेज का, थर्ड रिवीजन करने वाले अपन INICET में से जस्ट पहले 10 दिन का, जिसमें अपन सारा मटेरियल 10 दिन में करने की ट्राई करेंगे। ये हमारा एक्चुअल मॉक एग्जाम है, द बिगेस्ट मॉक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर INICET में। इवन इफ यू आर सिटिंग फॉर नीट पीजी, प्रिपेयर फॉर INICET में, क्योंकि उसका डेट है हमारे पास। बिना एंड डेट के, बिना गोल के, बिना डेडलाइन के कोई भी कुत्ता काम नहीं कर पाता, कोई भी इंसान काम नहीं कर पाता। हमारा डेडलाइन हमें मान के चलना है, INICET में है जो मिड मई में होने वाला है। ठीक है, बात को समझ लो ध्यान से, मिड मई में, क्योंकि नीट पीजी का, NB का किसी को नहीं पता कब होने वाला एग्जाम, बट मई का INICET उसी समय होगा। उस दिन के बाद हम एक शॉर्ट पॉज लेंगे, 3-4 दिन का ब्रेक लेंगे, चाहिए तो कहीं घूम के आएंगे, जो काम पेंडिंग थे बहुत टाइम से वो कर लेंगे उस टाइम पे, एंड स्लोली बेसलाइन को इम्प्रूव करने का ट्राई करना है हमें। GT ऑन GT, परसेंटाइल पे फोकस करना है, स्कोर पे फोकस नहीं करना, अपने पे ध्यान देना है, दोस्त पे नहीं। कौन सा रिसोर्स वो पढ़ रहा है, उसका स्कोर कैसा जा रहा है, भाई तेरी जर्नी उससे अलग है। तुझे अपनी सीट चाहिए, तुझे उसकी सीट नहीं चाहिए। बहुत सारी सीटें हैं, तुझे अपने लिए बस एक गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट निकालनी है, उससे ज़्यादा कोई गोल नहीं है अपना। तो किसी भी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, ब्रॉड जाना है, बेसलाइन को इम्प्रूव करना है, धीरे धीरे करके लेवल अप होता रहेगा। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9116324253। कोई भी डाउट है, कहीं भी अटक रहे हो, कुछ भी चाहिए मुझसे मांग लो, मैं बैठा हूँ हेल्प करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।